section 3. Please make sure you don't skip any lecture of section 3 because it is the difficult one. And in section 3, you have so many things which you need to cover. Chapter number 11. Chapter 11. Chapter 11 is the first chapter of section 3, which is the easiest chapter in the entire syllabus along with chapter 10. Chapter 10 and chapter 11 are the easy chapters. ठीक है, आप बेटा आपको ना इधर से लेके आनी पड़ेगी, नहीं वो हैंडल लगता। अच्छा, chapter 11 is initial problems of Pakistan. इसको क्या हो गया? I have to restart. Just 1 second. Chapter 11. गिराना मत भाई, खुद ना गिर जाना. Chapter 11. Initial problems of Pakistan. बेटा कल से आपकी क्लास जो है ना, classroom that would be different. From tomorrow onward, you people will sit in the classroom right under this room. ठीक है, आपका क्लासरूम इसके बिल्कुल नीचे वाला रूम होगा. नो, इसके बिल्कुल नीचे हॉल, बड़े वाला हॉल जो है. Is it clear? कल से आपका क्लासरूम is different for Islamiyat and for Pak studies. The classroom is just below this room. ठीक है, classroom, that is the classroom you people will use from tomorrow onward. Is it clear? जी बेटा, initial problems of Pakistan. जी ये साथ ही पढ़िए, सीट इधर से ले, बाहर निकलोगी तो साथ ही. हाँ, initial problems. In which year? The timeline of this topic is 1947 till 1948. Online students, beta, you people must know that this timeline is mainly dealing with Pakistan. Now, complete 1 year after independence. This is complete 1 year after independence. Who was governing? That is a general knowledge question. In this 1 year, who was the head of government in Pakistan? Muhammad Ali Jinnah was Governor General. M.A. Jinnah. And who was Prime Minister? Prime Minister was लियाकत अली खान. नहीं, वो बच्चे इधर तो स्विच करते हुए टाइम बोलना देगा कल. So Prime Minister is Liaquat Ali Khan. Beta, when we use name of all these people, yeah, these main leaders, so what is meant by them? These people were running government of Pakistan. These people were running government of Pakistan. Online students, beta, आपको आवाज ठीक से आ रही है? Can you hear me properly? Yes, sir. इन लीडर्स को क्या बोलते हैं? These people are combinedly called government of Pakistan. Yes, बेटा? नहीं होती. There is no holiday on Thursday. In academy, there is no holiday. Is that clear? Sir, Wednesday को भी So, कोई छुट्टी नहीं होती बेटा अकेडमी में. okay, जी बेटा, आपको ईद पे भी बुलाऊंगा इस दफा. ईद भी हम इकट्ठी मनाएंगे, ईदी भी दूंगा.
चलें, थैंक यू सर। फिर सर आ जाएंगे। बस ये देखिए ना कितने अच्छे बच्चे हैं मेरे। कराची से ही आएगा स्पेशल ईद मनाने हमारे साथ। डन हो गया। अच्छा, अब बेटा इनिशियल प्रॉब्लम्स। नाउ देयर आर 14 marks question which can be given on that particular chapter. 14 marks question। एक आता है कि इनिशियल प्रॉब्लम्स क्या है। 114 marks question is related to problems, and the other question is related to solutions. जी ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा, which two 14 marks questions can be given on this topic? Problems and number 2 solutions. Problems for जी problems for government of Pakistan. बेटा आप एक जगह से दूसरी जगह घर शिफ्ट करते हैं तो तब भी आपको इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। यहाँ पे लोगों ने अपना दे शिफ्टेड देयर कंट्री, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू मैनेज with very limited resources. जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Now we have, yes beta, now we have the initial problems. Number 1, the first main problem was related to refugee problem. इसको मैं कैटेगरीज बना देता हूं कि सबसे मेन प्रॉब्लम थे least important. For me actually major problem was refugee problem. जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, what what were the main issues related to refugees? What were the main issues related to refugees? refugees को क्या मसला था? सर एक मैं थोड़ी रिसोर्सेज नहीं सी थी। फैक्ट आपको बता दूं। yes, दुनिया में in the world this is one of the biggest migration in the history of the world. It's the biggest one. 10 million people from one side of the border to the other side of the border. इतनी बड़ी माइग्रेशन, मैस माइग्रेशन नहीं हुई। आप सिंपल सी बात करें कि आप जिसमें उसमें 50 मेहमान रहने के लिए और आपके पास खाना बनाने के पैसे भी ना हो तो हाउ वुड यू फील दैट? हाउ वुड यू मैनेज दैट? रिसोर्सेज के बगैर सरवाइव करना, इट वाज वेरी डिफिकल्ट for the government to survive in the meager resources. Is it clear everyone? The online students, is it clear beta? Is it clear? Yes, no? यस सर। Okay, now there were 3 types of problems which were associated to refugees. Yeah, associated with refugees. Number one, shortage of basic facilities of life. What are the basic needs of people? Like food, clothes, and Shelter. food, Shelter. clothes, and shelter. Yes, sir. ये 3 प्रॉब्लम्स होते हैं। ये 3 चीजें बेसिक नीड्स हैं, इनके बगैर आपका गुजारा नहीं है। अगर आप एक बात देखें कि गवर्नमेंट के लिए हाउ इट वाज अ प्रॉब्लम फॉर गवर्नमेंट, बिकॉज सपोज टू प्रोवाइड दीस थिंग्स टू पीपल। Government, so was that challenge for the government because government had not enough funds to manage these resources. Is that is the first point. Second point related to refugee. That point was to bring refugees peacefully in time of
violence. बेटा आप in this migration, Hindu and Sikh were killing. Hindu and Sikh people, they were killing Muslims, and Muslims were killing Hindus. आपको पता है ये killing start किस जगह से हुई थी? That killing started from रावलपिंडी. ये रावलपिंडी में एक एरिया है खयाबान सर सैयद. In Rawalpindi, this violence, actually the beginning of that violence started from Rawalpindi. Raja Bazaar के बिल्कुल पास है. That is the starting point of that violence between Hindus and Muslims. Ji online students, is it clear, beta? Yes. Is it clear? यस सर. सर स्क्रीन शेयर नहीं हुई. जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरा कनेक्शन मैंने चेंज किया है तो इस वजह से मैंने दोबारा आपको वो किया स्टार्ट. तो कैन यू हियर मी नाउ? आई वाज थिंकिंग कि आपको आवाज नहीं आ रही. आई हैव चेंज द कनेक्शन. सर आ रही है. कैन यू हियर मी? जी सर. Okay, beta. Now we are moving towards the third point. It was a big migration in the history of the world, and there was a lot of violence in the subcontinent, and due to that violence, it was difficult for people to survive. Okay? Next, third point. The third main reason of refugee problem was to provide employment as there were limited opportunities. अब ये देखें कि आपके कंट्री में लोग आ रहे हैं लेकिन you don't have the facility to give them these things. So all these things, when there was poor employment, it means the standard of living of people was also poor as well. Pakistan mein the overall life standards were very poor in that time period. So that's why we can say these three big problems became the major hurdle in the progression of Pakistan in the year 1947 and 1948. जब बेटा तीन रीजंस आपकी बन सकती हैं किसी भी इशू पे, थ्री रीजंस जब बनती हैं तो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी गिवन? 7 मार्क्स. तो इस पे बन सकता है 7 मार्क्स का क्वेश्चन. सिंपल क्वेश्चन में भी सिंपल क्वेश्चन इस पे क्या बन सकता है 7 मार्क्स का? Why were there refugee problems in 1947 and 48? Online students, beta, just write the question. Why were there refugee problems between 1947 and 48? Now look at this question. This question is very easy to answer by using the points I have given on the other side. These 3 points are associated with. आपने इन points को ही सिर्फ expand करना है the way in which I orally explained these. Is that clear, everyone? G online students, is it clear, everyone? Yes, sir. Any question? Next, the second big problem was military problem.
beta military problem was very major problem. Military problem. If we talk about military problem, if we talk about military problem, in the military problem there were three major things. Number one, shortage या dearth of army officers. Total army officers which we needed at that time were 4,000. As 4,000 were needed, but only 2,500 were present. So there was shortage of 1,500 officers. बेटा आप ये देखें कि आपके पास लीडर ना हो तो आप वॉर में सक्सेसफुल हो सकते हैं. तो इट मींस द ऑफिसर्स वर द लीडर्स. Officers were the leaders in war, and there was shortage of those officers. So next big problem was that problem which was associated with government of Pakistan. That problem was India gave old and rusted weapons to Pakistan during division of military assets. जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मिलिट्री एसेट्स में क्या आता है? आर्मी, वेपन्स, गन्स, आपके मस्केट्स हैं अगर कुछ भी हैं, आपके और भी जो एसोसिएटेड सर टैंक्स हैं. So at that time there was defense machinery as well. All these things were supposed to be divided between India and Pakistan. तो जब वो डिवीजन हुई तो वो डिवीजन उसमें पाकिस्तान को जो वेपन इंडिया ने दिए, these weapons were very very old and rusted. उन्होंने जो गन्स दी थी वो चलती नहीं थी, उनमें बुलेट्स वो रस्ट से वो भरी हुई थी, वो बुलेट वगैरह जो है उसमें आप यूज नहीं कर सकते थे, इतनी बुरी थी. देन देयर वाज टोटल इंडिया में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज. ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किसको कहते हैं? सर जहां पर गन्स बनती हैं. तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री टोटल इंडिया में कितनी थी? 16. बिटवीन 13, अच्छा 16 होंगी या 13 होंगी बेटा. दैट नंबर वाज वेरी गुड नंबर इन द सब कॉन्टिनेंट. बट हाउ मेनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज came in the share of Pakistan? 0. अंडा उसके पैसे दिए थे उन्होंने, वो सोल्यूशन में आ जाएगा. सो नो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री came in share of Pakistan, as all the other factories remained in part of India. तो यहां पे भी 3 रीजंस बन गए बेटा. Which type of question can be given separately? 7. What would be the statement for 7 marks? What were the military problems? No. Why were there military problems in Pakistan in 1947 and 48? Is it clear? Yes, beta. वो प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि टोटल इंडियन ऑफिसर्स वर आल्सो देयर. बट वो सोल्यूशन में आएगा कि पाकिस्तान took 1,500 ब्रिटिश ऑफिसर्स टू फुलफिल द नीड ऑफ आर्मी ऑफिसर्स. 1,500 1500 ऑफिसर्स हमने लिए थे. इज इट क्लियर एवरीवन? अच्छा, मिलिट्री प्रॉब्लम इज क्लियर.
Now, why these were the problems for government? You need to justify that thing. असल में मसला ये है कि इससे इन इश्यूज से हमारा कौन सा सिस्टम वीक हुआ? डिफेंस mechanism of Pakistan became weak. It was very difficult for Pakistan to defend in front of Indian army. ऐसा ही है ना? आपको पता कि पहली इंडिया के साथ वॉर कब हुई थी? When was the first war between India and Pakistan? No. So 1948. 48 में. It started in 1948. Like आपकी 1948 में वॉर भी स्टार्ट होगी और दूसरी साइड पे आपके पास मिलिट्री के एसेट्स की शॉर्टेज थी. इट्स देयरफॉर due to weak military resources, it was difficult for Pakistan to manage defense of the state. Is it clear, everyone? Online students, any question? Third point, कुछ बोल दो भाई, इतने लोग हो. No, sir. अच्छा, नहीं सर. नहीं है क्वेश्चन. Okay. Next we have economic problems. Economic problems में we will talk about division of asset भी कर लेंगे, तो इसको हम combine कर देते हैं economic problems. Economic problems. बेटा in the economic problems we have the biggest problem कि India did not give economic share to Pakistan. India did not give complete economic share to Pakistan. Is it clear? India did not give complete economic share to Pakistan. As total share of Pakistan was 750 million. How much share was given by India to Pakistan? Yes, but India gave only 200 million. India gave 200 million. Is it clear, everyone? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? यस नो? Yes, sir. Yes, sir. अब आपको लग रहा होगा ये 200 मिलियन बहुत ज्यादा पैसे हैं. ये टोटल कंट्री के लिए आप ये देखें, ये सिर्फ इस्लामाबाद के चंद सेक्टर्स के लिए भी काफी नहीं है. अगर आपने इस्लामाबाद के चंद सेक्टर्स को डेवलप करना है, दीज रिसोर्सेज आर नॉट सफिशिएंट. ये इंडियन रुपीस थे, कोई डॉलर्स या पाउंड्स नहीं थे. टोटल इंडियन एसेट्स जो थे वो 4 बिलियन के थे एट दैट टाइम. दैट वाज टू मच. बट पाकिस्तान का शेयर दैट वाज ओनली 750 मिलियन. इंडिया को हमने दिया, सब कुछ किया. एक इधर फैक्ट बताता चलूं, गांधी जो है ना, गांधी वाज द पर्सन इन इंडिया हु प्रोटेस्टेड ऑन 200 मिलियन. गांधी ने क्या कहा था कि पाकिस्तान को शेयर नहीं देना. गांधी said that we need to give share to Pakistan. गांधी raised voice for Pakistan. गांधी ने हंगर स्ट्राइक भी किया था. और पता है कि गांधी को एक हिंदू ने मर्डर किया था, तो उसने लॉजिक क्या दिया था? He said that he was asking for giving share to Pakistan. That's why I killed से Gandhi. मर्डर किया था ना उसे. तो इसीलिए यस बेटा, तो इसीलिए अगर हम ये कहें कि गांधी ने अगर अपने आप की अपनी जान दी थी, तो वो किसके लिए दी थी? जस्ट फॉर द राइट्स ऑफ पाकिस्तान. इकोनॉमिक, बिकॉज ही वांटेड इंडियन गवर्नमेंट टू गिव शेयर टू पाकिस्तान. जिस गांधी के ऊपर आप लोग हंसते रहते हैं कि जेल में गया, ये किया, वो किया, तो ही वाज द पर्सन हु वाज ट्रू ह्यूमनिस्ट. ही जस्ट सेड कि ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी वी नीड टू गिव देम देयर शेयर. सिंपल, दैट इज पार्ट ऑफ देयर शेयर. Is it clear? चलें. Next is no major factories or businesses in Pakistan
Therefore, it was difficult to develop. Is it clear, madam? These were the major economic issues for the new government. For the new government. Number 4, political problems. What type of political problems were there? Political leader तो थे हमारे पास. In the political problem, offices नहीं थे. Offices, stationery, ये सारी चीजें नहीं थी. पहले आप लिखें. There was issue of choosing new capital to run state affairs. बेटा स्टेट अफेयर्स को रन करना इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर गवर्नमेंट, क्योंकि बंगाली क्या कहते थे कि कहां पे कौन से सिटी को कैपिटल बना दो, ढाका को. बंगाली किसको कहते थे, ढाका को बनाओ. और पंजाब के लोग लाहौर को चाहते थे. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जिना चाहते थे कि कराची बने. तो इट वाज क्योस. अलग से कोई बना दिया, यस बेटा, इसलिए कोई अपने से उनके अलावा कोई बना दिया. जी बिल्कुल. तो देयर वाज इशू ओवर द न्यू कैपिटल. दैट वाज अ बिग प्रॉब्लम. सेकंड बिग प्रॉब्लम वाज देयर वाज shortage of office, stationery and government buildings. So to manage government affair was difficult. To manage government affair was difficult. Done, beta. Third main issue related to political problems. The third major political problem was there was not consensus on making of new constitution. हर प्रोविंस जो है वो डिफरेंट तरह की डिमांड्स लेके आ रहा था. तो गवर्नमेंट क्या सारे प्रोविंसेस की बातों को इट was that easy for government to listen the voices of all these groups who had different demands and different problems. So government के लिए it was a big challenge to resolve the political dispute. Even apart from that, there was a language issue. आपको पता है जैसे ही जिन्ना की डेथ हुई तो सबसे पहले लैंग्वेज मूवमेंट स्टार्ट हुई. इंडिया के अंदर कौन सी, पाकिस्तान के अंदर कौन सी मूवमेंट स्टार्ट हुई? लैंग्वेज मूवमेंट. It was difficult because Bengalis always wanted Bengali to make the national language of Pakistan, because Bengalis were 56%. Is it clear? So that's why it was a big issue. G online students, is it clear, beta? Is it clear, everyone? Yes. Yes, sir. Okay, now we have another problem that is called geographical distance. बेटा ये प्रॉब्लम ऐसी है जो कभी खत्म नहीं हो सकती थी. इट वाज दुनिया के अंदर अच्छा कोई ऐसा कंट्री नहीं था एट दैट टाइम जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ इस तरह से डिवाइड हो. क्या आपके एनिमी की टेरिटरी दरमियान में है? ऑन वन साइड यू हैव वन पोर्शन, ऑन अदर साइड यू हैव अदर पोर्शन ऑफ द कंट्री. ऐसे ही है. सो geographical problems. What were the geographical problems? Number one, two wings
East Pakistan and West Pakistan separated from each other by the distance of, कितना डिफरेंस था दोनों में? 1000. Yes, separated from each other from each other by distance of 1000 miles, which brought social gaps among the provinces. Yes, beta. बिल्कुल आ सकता है. इनएक्सपीरियंस कम थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको मैनेज कर लिया था कि जो इंडिया में हमारे मुस्लिम ऑफिसर्स थे, दे ब्रॉट दीज ऑफिसर्स बैक. यू कैन राइट ऑफिशियल्स की भी शॉर्टेज थी, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की भी कमी थी. वो भी आप पॉलिटिकल में लिख सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो कंटेंट ओवरलोड हो जाएगा. इसका भी बन सकता है, जिस तरह बाकियों का बन रहा है उस तरह इसका भी बन सकता है. ओके बेटा. सो डिस्टेंस ऑफ 1000 माइल, देयरफॉर it was difficult to communicate administrative issues. अब एक बात ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान में जाएगी तो इट मींस के उसमें ऑटोमेटिकली इतना बड़ा डिस्टेंस था, आपका एनिमी की टेरिटरी बीच में थी, तो हमारी कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी नहीं हो सकती थी. आप खुद देखें कि आपका एक घर एक जगह पे हो और दूसरा घर दूसरे सिटी में हो, तो यू कांट मैनेज दीज टू हाउसेस एट द सेम टाइम. इट मींस के देयर वुड बी सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंस इन इट. ऐसा है या नहीं है? तो मतलब क्या है कि पाकिस्तान एक वो कंट्री था जिसकी दो टांगे थी, और वो दोनों जो है इतनी ज्यादा दूर थी एक दूसरे से कि वो बंदा चल नहीं पाता था. स्टेबलाइजेशन नहीं थी, स्टेबिलिटी नहीं थी. ड्यू टू दैट डिस्टेंस, जो ये दोनों कंट्रीज, दोनों विंग्स के दरमियान जो रिलेशन था, उसको मैं हमेशा कहता हूं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप. ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है. ठीक है, एक उधर बैठा है, दूसरा उधर बैठा है, एक बात एक करता था, नाराज हो जाते थे, दूसरी नाराज हो जाते थे. तो दैट्स व्हाई इट वाज अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप. इज इट क्लियर? जी बेटा, इज इट क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, number 6. There was canal. Social problems were there. Social problems. Issue over making national language. बंगाली कौन सी लैंग्वेज चाहते थे? बंगाली को. और बाकी वाले लोग जो हैं वो पंजाबी, सिंधी, बलोची, एवरीवन वाज इंटरेस्टेड इन देयर ओन लैंग्वेज. क्लियर? ऑन द अदर हैंड, different ethnic groups had, बेटा डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के पास, एथनिक ग्रुप्स कौन से होते हैं? व्हाट वर द नेम्स ऑफ 3 एथनिक ग्रुप्स ऑफ पाकिस्तान? यस बेटा, जो ट्राइबल्स होते हैं सर. ट्राइबल्स नहीं, हम भी एक एथनिक ग्रुप से हैं. अच्छा, आप में से सिंधी कौन है? कोई सिंधी? 1 2 3 2 3 लोग हैं सिंधी. सिंध के कम लोग हैं. अच्छा, सिंधी जो है वो एक एथनिक ग्रुप का नाम है. पंजाबी, There are so many Punjabis. वेरी गुड. काफी ज्यादा डोमिनेंट हैं. लेकिन पता क्या है, इतने बुरे लोग हैं ये पंजाबी, इनमें से किसी एक को भी अपनी पंजाबी जुबान नहीं आती होगी. इनमें से जो भी सिंधी होंगे, सिंधियों को अपनी लैंग्वेज आती होगी. आती है सर. आपने जब सिंधी बोला था तो आपने वो बोला था सिंध में रह रहे हैं या फिर वो सिंधी? वैसे मैं आई एम जस्ट आस्किंग यू अबाउट सिंधी स्पीकिंग.
अच्छा सिंधी speaking, सिंधी सही है। कल्चर है ना, सिंधियों का एक अपना कल्चर है, पंजाबीज sir. का एक अपना कल्चर है, बलोचीज का अपना कल्चर है, पठान उनका अपना कल्चर है। तो जो जिस पठान को पश्तून है, मैं उसे ये भी कहता हूँ चाइना का पठान। संगे हैं? किधर है, कौन से वाला ये वाला, ये देखे ना, ये प्योर वाले पठान। जो भी पठान होंगे इन सारों को पश्तो आती होगी, पंजाबियों को नहीं आती होगी। शर्म आनी चाहिए इस बात से, इंतहाई शर्म सर आनी आती है। सर दोनों जबानें आती हैं, पंजाबी सर पश्तो। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ पाकिस्तानी हूँ। यस बेटा सर मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ पाकिस्तानी हूँ। जी। हैड डिफरेंट कल्चर्स। बेटा जितने भी एथनिक ग्रुप्स हैं, इनमें से 2 एथनिक ग्रुप्स अपनी लैंग्वेज को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, एक सिंधी और दूसरे पठान। दे एक्चुअली नो देयर लैंग्वेज। आप अगर सिंधीज होंगे 2 तो इन दोनों को ये आपस में सिंधी बोलते होंगे घर में भी। आप क्या बोलते हैं, सिंधी बोलते हैं घर में या नहीं तशा? आप नहीं बोलते? ये भी चाइना की सिंधी है, चाइनीज सिंधी। So had different cultures, therefore it was difficult to unite them. Is it clear? The online student, is it clear everyone? Yes, sir. अच्छा, तो टोटल नंबर ऑफ रीजंस हमारे कितने हो गए आज? 6 रीजंस हो गए। अभी कल हम इसके सैंपल क्वेश्चंस भी करेंगे और कल हम इसके सॉल्यूशंस ऑफ दीज प्रॉब्लम्स भी करेंगे। तो कल ये आपका चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। वी हैव डन विद 6 प्रॉब्लम्स टुडे एंड ऑल दीज प्रॉब्लम्स कैन बी गिवन फॉर 4 मार्क्स क्वेश्चन सेपरेटली। इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो 7 के लिए भी सिर्फ आती हैं। विच 2 प्रॉब्लम्स कैन बी गिवन फॉर 7 मार्क्स? Refugee and military problems can be given for 7 marks question as well. Is it clear everyone? The online students, is it clear? यस यहां तक काज बेटा कर लें। अब हम ज्योग्राफी करते हैं। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम ज्योग्राफी नाउ। चलें जी, डन। अरवा बेटा, वुड यू प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट? ये आखिरी 4 का ले लें। सर इसका ले लिया। ले लिया? जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द फर्स्ट फ्यू वन। ये वाली, ये पूरा एक दफा लेना ताकि ये टॉपिक नेम भी आ जाए और ये सारी चीजें। जस्ट टेक वन। सर ले लिया। ले लिया? चले जी बेटा। यस 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 जी बेटा। इज इट क्लियर एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अब्दुल्ला, आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं पिछले काफी दिनों से। लास्ट 2 वीक से आपका देयर इज नो टेस्ट फ्रॉम योर साइड। सर मैं इधर था नहीं उस दिन। अच्छा, मैंने कहा था आपकी मामा को घर से करके दे देंगे। सर मैं भेज दूंगा आपको। करीम कौर, वेयर इज योर टेस्ट?